سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو فیصلہ آیا، اب اس پر حکومتی وزراء تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ دفاع کر رہے ہیں کہ چوری پکڑی گئی، رسیدیں نہیں دے سکے. اس فیصلے کا آپ سیاست پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادر گرمانی بیٹا آپ کا شکریہ، آپ آئے. پتہ نہیں کہاں سے آدمی شروع کرے. سر ابھی فیصلے سے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے. پاکستان، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر جگہ ہر علاقے میں ممالک میں افواج ہوتی ہیں، پارلیمنٹس ہوتی ہیں، ان کا کوئی نظام حکومت ہوتا ہے. دنیا یعنی جب سے انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ بھائی ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے یہ بہتر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے یا ممالک کے درمیان تعلقات اچھے یا برے ہونے کے لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. انسان نے اپنی کلیکٹیو وزڈم میں موجودہ جمہوری نظام تخلیق کیا. اس میں بہت سارے نقائص صحیح، لیکن تقریباً ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ لوگوں کی رائے سے قائم حکومتیں، نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں. پھر دکھ ہوتا ہے بار بار یہ لفظ سنتے اور پڑھتے، اسٹیبلشمنٹ. یعنی یہ نہیں کہ ہم دنیا میں علیحدہ کوئی ملک ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے والے ہیں. ہر ملک کے افواج ہوتی ہیں، ہر ملک میں مختلف نو قسم کے لوگ بستے ہیں، مختلف نسل کے لوگ بستے ہیں، مختلف زبانوں کریڈز کے لوگ بستے ہیں. لیکن سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمام انسانیت نے فیصلہ کیا ہے کہ بابا جس آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا وہ سیاسی فیصلوں میں نہیں بیٹھے گا. یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے. ہماری افواجیں خدا ان کو مضبوط کرے، بہت مضبوط کرے. کوئی ملک، میں بار بار گسے پٹے فکرے استعمال کرتا ہوں یا میری الفاظ ناقص ہیں، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ ملک چل نہیں سکتا جس ملک کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں نہ ہو، اور وہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا جس کی دفاع کے لیے بہترین افواج نہ ہو. ہماری بھی فوج ہے، دنیا کی بھی افواج ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. یعنی ہماری اپنے فیصلے کی بات کی، میں ذرا سوچ میں پڑ جاتا ہوں کیا فیصلے، کون سا فیصلہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب صرف اس لیے مشکل میں پڑ جاتے تھے جب وہ جمہور کی بات کرتے تھے کہ یہاں ایک جمہوری نظام ہوگا، یہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی. بے نظیر بھٹو ان بچوں سمیت کبھی فرانس میں ہوتی تھی، کبھی کدھر ہوتی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت قابل سزا ٹھہرے جب انہوں نے اپنے تجربے میں یہ سیکھا کہ جب تک پاکستان میں دنیا جہاں کے ملکوں کی طرح افواج پاکستان اور ایجنسیوں کو سیاست سے دور نہیں ہٹایا جائے گا، یہ ملک حرکت نہیں کر سکتا. بس پھر نواز شریف کیا تھا، نواز شریف ان کے لیے ایک درد سر بنا، مرتے مرتے بچا. 10 سال پتہ نہیں 70 یا 50 یا 60 ملازمین سمیت جہاز میں بٹھا کے سعودی عرب بھیج دیا گیا. یہ طریقہ بربادی کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بے نظیر صاحبہ پہ کیسز تھیں، ظلم کیا ہوا ان کی نقطۂ نگاہ میں، ایک ڈکٹیٹر کے نقطۂ نگاہ میں، کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں لندن میں جا کے بیٹھیں تقریباً 36، اور وہ سب متفقہ طور پہ اس بات پہ متفق ہوئیں کہ آج سے ہم نے ایک نئے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے جس میں آئین بالادست ہوگا، جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی. ہمارے ایک دوست پارٹی کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے، انہوں نے بلف کہ میرے 25 سال کے کیسز وڈرا کر دیں.
मैं इस लाइन्स में शामिल नहीं होंगी। दुनिया जानती है, आप जानते हैं, न फिर वो गुनाहगार रही, न उनकी पार्टी गुनाहगार रही। केसेस जुड़ा हुए, जब एक आदमी को फलाने केस में बरी कर देते हैं तो फिर दूसरे को भी बरी करना पड़ता है। उस फैसले के नतीजे में 9,000 क्रिमिनल केसेस जुड़ा हुए, 99,000, जिसमें हर किस्म के केसेस थे, जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी आज़ाद हुए जिन पे 6, 7, 8 कत्ल के केसेस थे, और वो आए पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदों पे फायज रहे। सर कुछ नाम अगर बता दें। नाम आपको भी पता हो, हमें भी पता हो, क्या गरीबों को बार बार बुरी बात होती है गुश्तमाही करना। मेरा मतलब ये है कि ये 6ठी सदी ईस्वी के बादशाहों के इख्तियार में भी नहीं था कि एक पार्टी उस पे या अच्छे या बुरे अपने केसेस बनाए। जब वो आपके लाइन पे आ जाती है तो 9,000 केसेस लोगों के सारी दुनिया की जेलों के दरवाजे खोल दिए गए। इमरान खान भी अभी अगर वो उनके कहने की बात मान ले तो न उसके पे केसेस होंगे, न उसको तकलीफ होगी, न वो जेल में होगा, बल्कि यहाँ से लोग जाके बिल्कुल शहजादे की तरह उसे हार पहना के ले आएंगे, और अगर चाहे उनकी ज़ेर साया प्रीमियर बन जाएगा दोबारा। जी दोबारा नहीं, से 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, ये नहीं चल। पाकिस्तान हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी अपनी बदमाशियों की वजह से, हमारी अपनी रिश्वतखोरी की वजह से बहुत ख़तरनाक हालत में है। तो जगदीश साहब, आप समझते हैं कि खान साहब इस वक्त समझौता नहीं कर रहे? जिंदाबाद, उन्हें करना भी नहीं चाहिए, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। होता है ज़िंदगी में, यू हैव टू गो थ्रू सम हर्डल्स। लेकिन जगदीश साहब, आपने जिनका जिक्र किया कि मियाँ साहब को सऊदी अरब भेजा गया, मोहतरमा लंदन में बैठ के मुलाकातें करती थी, इजलास बुलाती थी, सारी जमातों ने सफ़र किया है, सारी जमातों की हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी हुकूमतें हटाई गई हैं। आज भी तो जगदीश साहब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं। तो आपको लगता है कि फिर बिलावल साहब हों, पीपल्स पार्टी या नून लीग, इन्होंने माजी से कुछ सीखा है? उनकी मर्जी, सीखे या न सीखे। अब तो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को ये सोचना होगा कि हम इस मुल्क को इस बर्बादी से किस तरह निकालें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चों को पीटो, अपने बच्चों के जज्बा हुर्रियत को कूटो, अपने बच्चों के दुनिया अपने उन बच्चों की कदर करती है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग करती है कि बच्चा एक वक्त ऐसे आता है कि यू हैव टू से नो। यहाँ नो की ताकत रखने वाले चाहे जवान हो, औरतें हों, बच्चे हों, उनको कूटा जा रहा है। क्या करें, क्या नतीजे में अब क्या कर रहे हैं? वाहिद मुल्क है, मैं माफ़ी चाहता हूँ बार बार कह के, वो मुझसे नाला भी हैं, यानी अल्फाज मेरे गड़बड़ हो रहे हैं। वाहिद मुल्क है जो अपने बच्चों को डराता है, करप्ट करता है, चोरी शामिल कर देता है, उनकी फाइलें बनाता है, फिर जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्हें एक इदारा वाले कर देता है। ये कैसे होगा? ये किस तरह चलेगा ये मुल्क? Let the people govern themselves. जिस आइन आपने कहा तारीख आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कागज़ का टुकड़ा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हम सब से बार बार ये हल्फ लिया गया है, और दुख की बात यह है हमारे इदारे जो सियासत में कूद पड़े हैं वो अंडर ओथ हैं कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। दुनिया के लोग, अमेरिका के हो, यकीनन उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी से ताकतवर हो जाए। तो सर, मौजूदा सेटअप में आप इस्टेब्लिशमेंट की कितनी मुदाखलत देख रहे हैं आप उनकी? आपको पता नहीं है? सर मुझे नहीं पता। अभी आपने कहा कि जब इमरान खान की पार्टी के रब से, हाँ सर, वो तो बन चुके हैं। हुकूमत में मुदाखलत किस हद तक आप देख रहे हैं? हुकूमत है ही नहीं, आइन को दरखोर इतना समझा जा रहा है। आइन को खुद, आइन के अपने अल्फाज
आर्टिकल 6 क्या है कि जो आदमी आइन को छेड़ेगा, उसको उल्टा पुल्टा करेगा, उसको रोंदेगा, वो और जो उसका साथ देते हैं सब कैपिटल पनिशमेंट के हकदार है। तो मौजूदा सेटअप में, मौजूदा सूरत हाल में आपके मुताबिक आर्टिकल 6 अगर आइन के मुताबिक लगे तो किस पे लगता है? हमें शौक नहीं है कि किसी को, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभी आइन की अपनी जुबान तो नहीं है, आइन कागज का टुकड़ा नहीं है। आप गुरमानी साहब लाहौर के रहने वाले, वो बच्ची पता नहीं कहाँ के रहने वाली, मैं कहाँ, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ, हम एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते, हम एक दूसरे के इलाकों में नहीं गए हैं। इस मुल्क को जिस चीज़ ने इकट्ठा रखा हुआ है वो ये मुआहिदा है, उमरानी मुआहिदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगरचे इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आइन अब भी मुत्तसिल पश्तून इलाकों को एक सूबे में नहीं लाया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसको आप छेड़ेंगे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। लेकिन अचकज़ई साहब फिर ये भी तो एक अलमिया है ना कि हम इदारों को कहते हैं कि वो अपनी हुदूद में रहें, लेकिन जब भी वक्त आता है हम उनके साथ बात भी करते हैं। इमरान खान साहब ने बात की, फिर उन्होंने मुखालफत की, आज फिर वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो जेन्युइन पॉलिटिकल आंसर है, उन्होंने कभी भी उसूल पे कुर्बानी नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पहले दिन से लेकर जेन्युइन लोगों को जो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं आइन के स्पिरिट के मुताबिक, आइन के ज़रिए वाकई इस मुल्क को एक सही रास्ते पे ला सकते थे, उनको पीटा गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। जो आदमी कंप्रोमाइज़ करता है, जो बिकता है, जो लोगों को ख़रीदता है, अपनी वफादारियाँ बेचता है, वो वफादार। तो शहबाज और जो अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता वो गद्दार। ये उल्टा है। तो शहबाज शरीफ साहब समझौता करके इस ओहदे पर बैठे हैं। शहबाज शरीफ करीब सुन रहा होगा, वो मुझसे कुछ नाराज़ भी है, मेरे मुंह से कभी कभी अल्फाज निकल जाते हैं। दुनिया जानती है, वो जानता है, उसका स्पीकर जानता है, उसका वज़ीर ख़ारजा जानता है, उसका वज़ीर कानून जानता है कि उन्होंने एक छीना हुआ मैंडेट उस पर बैठे हैं। इखलाकी तौर पर आदमी ऐसे कर सकता है, इखलाकी तौर पे आदमी में इतनी इखलाक होनी चाहिए कि बाबा ये मैं नहीं करता। दुनिया जानती है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने फरवरी को जो इलेक्शन था उसमें मैंडेट दिया इमरान खान को। आपने उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल छीना, आपने उस पार्टी के लोगों को जेलों में डाला। उसके बावजूद, यानी अगर 200 हल्के हैं तो 200 हल्कों पे इमरान खान की सपोर्ट करने वाले मर्दों और औरतों ने 200 सिंबल पे वोट डाला। तो सर इस सेटअप में जो आप समझते हैं कि पीटीआई को वोट दिए गए, उनकी हुकूमत बननी चाहिए थी, तो मियाँ साहब का रोल फिर आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि वो तो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मियाँ साहब को खुदा, मियाँ साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ साहब का एक अच्छा रोल था, हालांकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया आए थे, लेकिन अपने उज़्दम में, वो तजर्बे में ये सीख गए कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को डुबो रहा है। ठीक है। एंड देन ही स्टूड अप अगेंस्ट। उन्होंने अच्छा स्लोगन दिया, वोट को इज्जत दो। उसके नतीजे में वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर बना। मेरा दिल तो ये चाहता था, मेरा दिल भी चाहता है कि उसे कह देना चाहिए था कि यार जो कुछ हो रहा है गलत है, इमरान खान की पार्टी जीत गई है, लेट देम में उनको हुकूमत बनाने दें। एक तो उनके अपना स्टेचर बहुत बढ़ जाता, दूसरे पाकिस्तान की सियासत से ये गन चला जाता। तो उन्होंने दबाव में सर किया है कि ये हुकूमत बनी? मैं दूसरों का अंदाज़ा तो नहीं कर सकता। मैं जिस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जानता हूँ, उन्हें अब भी तकलीफ़ में होना चाहिए। वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं दोनों। वो एक जमहूरी मिजाज का आदमी था, वो वोट की ताकत को जानता था, वोट की ताकत पे यकीन रखता था। या फिर ये मुश्किल है कि घर में गड़बड़ वो हर वक्त तमाशे हों। बहरहाल मैं अब भी, मेरी ख्वाहिश होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस क्राइसिस में रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी पार्टी को कह सकते हैं, अपने घर वालों को कह सकते हैं कि वाह इनफ इज़ इनफ, ये हम क्या कर रहे हैं, दुनिया हंस रही है, दुनिया जाग रही, बिस्मिल्लाह, लेट अस हैव। हुकूमत तहलील करें, हुकूमत तहलील कर दें, बिल्कुल तहलील कर दें, कोई रास्ता ढूंढ लें। When there is a will, there is a way। अगर हम चाहें तो ये काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गलतियाँ हुई हैं, बस ठीक है, एक साल हुआ, भूल जाओ, आए बिस्मिल्लाह करके लाउडली थिंकिंग, कोई 3-4 महीने के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाए,
اس میں فضل الرحمان بھی شامل ہوں، نواز میاں نواز بھی شامل ہوں، ساری پارٹیاں شامل ہوں، اور یہ نیشنل گورنمنٹ بشمول اسٹیبلشمنٹ تمام ادارے مل کے سوچیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. اور یہاں جو آئینی بحران ہے جس نے یہ کیا شہباز بھائی ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے عدالتوں کے پر کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کو کرپٹ کر رہے ہیں. یعنی نئے معمولی باتوں میں کل عمران خان کو جن کیسز میں وہ ہوئی ہے، ہماری ملٹری اور ان کی ایجنسی کی ہوئی ہیں، اور سول ایجنسیاں کوئی 6 7 8 ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ بک رہے ہیں 70 کروڑ 80 کروڑ کا ایک ووٹ. آج تک انہوں نے کسی کو پوچھا کہ بھائی اطلاع آئی ہے کہ تو نے صرف ایک ٹک مارک کے لیے سینٹ کے اندر تھا، سینٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اس الیکشن کے اندر یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹک مارک کے لیے اب 70 کروڑ روپے کسی کو نہیں پوچھا گیا. بس مت پکڑو مت چھوڑو اس کو عمران خان کو بسرا بی بی کو توشہ خانے سے پتہ نہیں کیا لیا، فلانے سے پتہ نہیں کیا لیا.